آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے کہ ایک لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا اور اسے ٹی وی کے ساتھ قبر میں دفن کیوں کیا گیا۔ آخر وہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا دردناک عذاب آیا کہ اس کی لاش کو دیکھ کر گاؤں والے توبہ استغفار کرنے لگے۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس واقعے کو سننے سے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ مرال صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی، جب وہ منع کرتے تو بیوی بیچ میں آ جاتی، کہنے لگتی کہ بچیاں ہیں انہیں آزادی سے جینے دیں، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں۔ مرال صاحب کو بیوی اور بیٹیوں کی بات پر افسوس ہوتا، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑے بےہودہ قسم کا ناچ کرنے لگی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا، تو بیوی نے انہیں غصے سے برا بھلا کہا تو مرال صاحب گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی، گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی سورج سوا نیزے پر موجود ہے، گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے مرال صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر گرہستی چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنی پڑتی تھی۔ پھر 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا جن کے رشتوں کے لیے وہ بے حد پریشان تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان کی بیٹیوں کے لیے اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا، اور جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کو ودا کر دیتے۔ 1-2 اچھے رشتے آئے بھی تھے، لیکن ان کی بیٹیاں ان کو ٹھکرا دیتی۔ ان کی بیٹیاں جوان ہی نہیں بلکہ بڑی بے حیا اور گھمنڈی تھیں، غرور کرتی تھیں۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے سے باز نہیں آتی تھیں۔ آج بھی مرال صاحب آفس سے لوٹتے وقت کافی زیادہ پریشان تھے کہ آفس میں ان کے ایک دوست نے ان کو اپنی شادی کا کارڈ دیا، تو ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں گا، کیونکہ ان کا بیٹا تو تھا نہیں۔ اب تک وہ ایک بیٹی کی بھی شادی نہیں کر پائے تھے۔ وہ جتنا بھی کماتے تھے سب کے سب ان کی بیوی خرچوں میں اڑا دیتی تھی۔ نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے اور نہ ہی ان کی بیٹیوں کو ودا کرنے کے لیے بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے۔ وہ بوڑھے آدمی اس فکر میں مبتلا تھے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی قابل نہیں ہیں، نہ تو انہوں نے پڑھائی کی تھی نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا۔ بس سارا وقت یا تو اپنی ماں کے ساتھ بازار کے چکر کاٹتی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ مرال صاحب نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے اور اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے، کم سے کم وہ بڑی بیٹی کا فرض تو ادا کر سکیں گے۔ انہی سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کی تیز آواز نے ان کا سواگت کیا۔ مرال صاحب کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے۔ اب بھی مرال صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھیں کہ انہیں باپ کے سلام کی آواز تک نہیں سنائی دی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی ہوئی تھی، ادھر ادھر سامان بکھرا پڑا تھا اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی رہتی۔ مرال صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ 3 بیٹیوں کے ہونے کے باوجود بھی کیسے گھر کباڑ خانہ بنا ہوا ہے۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئے، کسی نے ان سے پانی تک نہ پوچھا، ان کا سارا بدن پسینے سے ڈوب گیا۔ وہ بہت دور سے پیدل گھر آئے، کچھ دیر بعد وہ پانی پی کر سانس لینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بیوی اپنے موبائل فون میں بزی تھی۔ مرال صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ اپنے فون میں ہی بزی رہتی تھی۔ مرال صاحب اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے، نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا نہ ہی بیوی کو۔ مرال صاحب بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آتی ہوئی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ مرال صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں جب امام صاحب نہیں ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں وہ نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسی طرح کی چیزیں وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو مرال صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے کہ ٹی وی کی آواز کو کم کر دو، لیکن ان کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے اپنے باپ کی بات ذرا بھی نہ سنی۔ انہوں نے ٹی وی کی آواز نہیں کم کی۔ مرال صاحب غصے سے اٹھ کر کمرے میں گئے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے ہی انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، اتنا بڑھیا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ مرال صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو، اذانیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ان کی بیٹی اپنے باپ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح سے اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت مرال صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، کچھ تو دھیان دیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کریں۔ مرال صاحب کی بیوی نے فون سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بیٹیوں کو سمجھانے کے بجائے ان کی بیوی نے انہیں ہی گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ مرال صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔
उनकी बेटियों का मुस्तकबिल उन्हें तारीक नजर आ रहा था। उन्हें अपनी बेटियों की फ्यूचर की परवाह थी कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या बनेगा। नमाज अदा करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने बहन के आगे फरियाद की कि उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले, लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे नमाज का पता न हो और न ही दीन दुनिया का। और बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है और न ही उसे घर गृहस्थी संभालने आती है, न वो दीनदार है। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना सकती हूँ? मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी बात अपनी जगह ठीक थी, इसलिए मुराद साहब खामोश हो गए और फिर घर वापस लौट आए। रात के 11 बजे वो सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाजें पूरे जोर से गूंज रही थीं। और फिर उस रात 1 बजे तक वो नींद में कच्ची पक्की करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज कम न हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती थीं। और शायद यही वो बात थी कि कोई भी मुराद साहब की बेटियों के लिए रिश्ता लेकर नहीं आता था। चुनांचे अगली सुबह मुराद साहब की आंख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। तेज बुखार होने की वजह से मजबूरन उन्होंने अपने दफ्तर से छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थीं। लेकिन जब वो जोहर की नमाज के बाद भी न उठी, तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज क्यों नहीं सिखाती? सारी सारी रात जागती हैं और आधा आधा दिन सोती हैं, ये कौन सा तरीका है? और अपनी बेटियों के लिए तुमने भी कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की, हमारी बेटियों का क्या बनेगा? चुनांचे मुराद साहब की बीवी ने एक नजर उन पर डाली और कहने लगी हमारी बेटियां आप पर बोझ नहीं हैं, और आजकल के दौर में तो हर घर में ऐसी ही रूटीन होती है। अब पता नहीं क्यों आप छोटी छोटी बातों पर इतना शोर मचाने लग गए हैं। जाकर आराम कीजिए, आपको मैं कमरे में खाना दे दूंगी। आप घर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चियों के पीछे ही पड़ जाएं। उन्हें आजादी से उनकी जिंदगी जीने दें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब बातें आपको आपकी बड़ी बहन ने सिखाई है। कल आप उनके घर गए थे ना, अब आकर तुमने हमें ही सुनाना शुरू कर दिया। उनकी अपनी बेटियां क्या करते फिरती हैं, उन्हें इस बात की तो फिक्र नहीं, मेरी बेटियों को बुरा भला कहती है। उनकी बीवी ने उल्टा उन्हें ही बुरा कह दिया और फिर वो खामोश हो गए क्योंकि वो जानते थे ज्यादा कुछ कहेंगे तो घर में झगड़ा होगा। शुरू में वो बीवी पर बहुत रोक टोक लगाते थे, उसे सही गलत समझाते थे। इसी वजह से बार बार उनकी बीवी माँ के घर जाकर बैठ जाती थी। बेटियां पैदा हुई तो मुराद साहब की माँ ने समझाया कि इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं, बेटियों पर बुरा असर पड़ता है, तुम्हें कुछ सब्र से काम लेना होगा। और फिर उस दिन के बाद मुराद साहब बुरी तरह खामोश हो गए और इसी बात का उसकी बीवी ने खूब फायदा उठाया। वो बुरी तरह अपनी मनमानी करने लगी। कभी कभी तो मुराद साहब को इस बात पर अफसोस होता कि उन्होंने माँ की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी से शादी ही क्यों की। दरअसल उनकी और मैमूना की पसंद की मोहब्बत की शादी थी। मैमूना उनके मोहल्ले में रहने वाली थी, वो बचपन से ही उन्हें देखते आए थे। लेकिन जब वो जवान हुई तो मुराद साहब के दिल में उतर गई। मुराद साहब ने फैसला किया वो मैमूना से शादी करेगा। और जब यही बात उन्होंने अपनी माँ को बताई कि वो मैमूना को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी माँ और बहनों ने साफ मना किया। कहने लगी वो लड़की खूबसूरत जरूर है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं, न ही वो दीनदार घराने से है और न ही उनके घर में लड़कियों की कोई तरबियत है। मुराद साहब की माँ के लिए लड़की का दीनदार होना बहुत जरूरी था और उन्होंने तो मुराद साहब के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी। इसलिए बेटे को साफ लफ्जों में मना कर दिया। किसी की बेटी के ऐब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मैमूना और उसकी बहनें बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं, हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। मैमूना भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, लेकिन उस वक्त जवानी का जोर था और मुराद साहब को बेइंतहा मैमूना से इश्क था, उनके ऊपर आशिकी का भूत सवार था। उन्हें अपनी माँ बहनों की बातें समझ में नहीं आई थी। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा माँ जो भी हो आप मेरी मैमूना से शादी करवा दें। माँ अपने इकलौते बेटे की ख्वाहिश की वजह से खामोश रही। मुराद साहब की शादी हो गई, लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरे मैमूना के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती और हर वक्त बस उसे घर से बाहर जाने की लगी रहती। कुछ ही महीनों में मुराद साहब को मैमूना की असलियत पता चल गई। मुराद साहब शुरू से ही नमाजी और परहेजगार इंसान थे, लेकिन मैमूना एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, चेहरा मेकअप से भरा होता और वो कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू में तो इस बात पर उनसे कई दफा झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैमूना के माँ बाप उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वो अपने घर जाकर बैठ जाया करती। मुराद साहब उसे बार बार मनाकर घर वापस ले आते और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर इन चीजों का बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बड़ा मुतासिर करती है। और फिर मुराद साहब बेटियों की वजह से खामोश हो गए, लेकिन दिन ब दिन उनके घर के हालात खराब होते चले गए। उनकी बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। मैमूना को तो अपने सजने संवरने से फुर्सत ही न मिलती और ये बेटियां भी ना जाने उसने कैसे पैदा की, वरना उसका बस चलता तो वो कभी भी माँ न बनती। उसके लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी माँ उनकी आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर लग गई। उन्हीं दिनों घर का सारा निजाम धड़म भरम हो गया।
मुराद साहब को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि जब तक उनका घर उनकी माँ ने संभाला हुआ था तो ठीक था। चुनांचे माँ का इंतकाल हुआ, मैमूना ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी। न ही बेटियों पर ध्यान देती, न ही घर पर तवज्जो देती। मोहल्ले में वो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर, तो कभी किसी सहेली के साथ बाजार के लंबे चक्कर काटने निकल जाती और पीछे से मुराद साहब दफ्तर के साथ अपना घर भी संभालते। कुछ साल तो उनकी बेटियां स्कूल गईं, उसके बाद वो भी घर बैठ गईं। उन्हें भी माँ की तरह हर वक्त तैयार होने का, सजने संवरने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाए, मेहंदी लगाए, वो खुद को फिल्म की हीरोइन समझती थीं। जबकि मुराद साहब तो ये चाहते थे कि उनकी बेटियां दीनदार और नेक हों। मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का असर था। वो मुराद साहब से बदतमीजी पर उतर आती और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे क्योंकि हर कोई मैमूना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि बेटियों को भी अपने जैसे ही परवान चढ़ा रही है और जिस तरह मैमूना ने अपने घर को नजरअंदाज किया इसी तरह उसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी मुराद साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे रहते। कभी कभी तो वो सोचते कि काश अपनी माँ की बात मानकर वो मैमूना जैसी औरत से शादी ही न करते तो आज उनकी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जैसी बनती। ऐसी ही फिक्रों में डूबे कई दिन निकल गए और फिर एक दोपहर वो दफ्तर के काम जल्दी निपटाकर घर वापस लौटे तो ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। मुराद साहब को देखकर वो लड़का फौरन वहाँ से खिसक गया जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ आई। वो घर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा कि वो कौन सा लड़का था और वो किससे बात कर रही थी, लेकिन बेटी खामोश रही, उसने कोई जवाब न दिया। वो सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, क्या बात है, घर आते ही क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया? हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश न किया करें। मुराद साहब ने गुस्से में कहा, जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी, क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब न करूं? मुराद साहब की बीवी अजीब नजरों से उन्हें देखकर बोली, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर देखकर ही पसंद किया था, तो फिर आज आपकी बेटियां आपको क्यों बुरी लग रही हैं? लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है, मैं भी अपनी जवानी में ऐसे ही करती थी और आपने भी मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बातें सुनकर मुराद साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने कभी तुमसे दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं की, तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी माँ को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया और तुम्हें इज्जत से रुखसत करवा कर ले आया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले के अगर 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ वो लड़का कौन था, वो बड़ी दोपहर में ऐसे तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था? मुराद साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा वो मेरे दोस्त का भाई था, किसी काम से आया था, आपने तो बिला वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया। और फिर अम्मा के इशारे पर वो टीवी खोलकर बैठ गई। मुराद साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुम ही कुछ होश कर लो, मैं पहले ही इनके रिश्तों की वजह से बहुत परेशान हूँ, ये ऐसी हरकतें करेंगी तो क्या खाक इनके रिश्ते आएंगे? बीवी ने एक नजर मुराद साहब पर डाली और कहने लगी, आप इनके रिश्ते की फिक्र न करें, ये अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगी तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल माँ बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। उनकी बीवी खूब तैयार थी, कहने लगी, मैं जरा पिछली गली में अपने सहेली के घर जा रही हूँ, अभी जाकर आप भी आराम कर लें और बेटियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, जवान बच्चियों के पीछे न पड़ जाया करें। ये कहकर वो घर से निकल गई तो मुराद साहब सोचने लगे, काश मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की होती तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। यानी अब उस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था उनको। उस वक्त उन्होंने अपनी माँ की बात क्यों न मानी? वो जान गए थे कि उनकी माँ एक दरवेश औरत थी, वो अल्लाह की एक नेक बंदी थी और वो उसे समझाती थी। लेकिन मुराद साहब के दिमाग पर तो इश्क का भूत सवार था और यही वजह थी कि उन्हें अपनी माँ की कोई भी बात समझ नहीं आई। और आज जब वो पछता रहे थे तो उनके पास वापसी का रास्ता नहीं था। वो अपने कमरे में तन्हा ही रह गए। बाहर तीनों बेटियां जोर शोर से गाने चलाकर बैठी थीं। मुराद साहब ने उन्हें कुछ न कहा, लेकिन असर की अजानें हुईं और गानों की आवाज कम न हुई तो वो कमरे से निकले और फिर देखकर उनके कदमों तले से जमीन ही खिसक गई। उनकी बड़ी बेटी तेज आवाज में गाने चलाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा नाच कर रही थी। कभी वो कमर मटकाती तो कभी सीना, दुपट्टा भी नहीं था और छोटे कपड़े थे। मुराद साहब आगे बढ़े और उन्होंने रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। गुस्से से कहने लगे, ये मेरा घर है, कोई तवाइफ खाना नहीं है, तुम तीनों को शर्म नहीं आती? ये सुनना था कि बेटी बदतमीजी से बोली, अब्बा आप ऐसा करें कि मस्जिद में ही बिस्तर लगा लें और घर न आया करें, आपको हर वक्त बस लेक्चर देना होता है। बेटी की बात सुनकर मुराद साहब ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी शरीफ घराने की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अल्लाह नाराज होता है। लेकिन मुराद साहब की बेटी ने उनकी एक न सुनी। कहने लगी कि अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना तो आपको क्या है, आप जाएं और जाकर मस्जिद में बैठ जाएं। उसने दोबारा टीवी चलाया और टीवी देखने बैठ गई और उनके सामने ही नाचने लगी। उसने ये बदतमीजी करना अपनी माँ से ही तो सीखा था, क्योंकि उनकी माँ भी तो जवानी में ऐसा ही करती थी। वो भी गलती करके कभी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि सीना तान के डटी रहती थी। अब उनकी बड़ी बेटी नीलम ने भी यही किया था। मुराद साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घर को छोड़ा और मस्जिद में आकर बैठ गए। नमाज पढ़ लेने के बाद भी उनका घर वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था। वो बस मस्जिद के एक पिलर से
टेक लगाए रब से दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरह उनकी बच्चियों को हिदायत मिल जाए। इतने में मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मुराद साहब जल्दी से घर जाएं, आपकी बेटी ने आपको बुलाया है। ये सुनकर मुराद साहब हैरान हुए कि कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अचानक क्या हो गया। वो जल्दी से मस्जिद से निकलकर घर पहुँचे, क्योंकि दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थीं और वो सब बहुत ही हैरान परेशान नजर आ रही थीं। मुराद साहब ने जगह बनाई और वो घर के अंदर गए। उनकी बड़ी बेटी चीखें मार मार कर रो रही थी, जबकि छोटी बेटियां परेशानी से उसके पास बैठी थीं और बीवी के चेहरे के रंग भी उड़ गए। और बड़ी बेटी चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, अम्मा सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा है। मुराद साहब ने पूछा क्या हुआ, तो उनकी बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी तो मुझे भी इसके चीखने की आवाज सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि इसे नजर आना बंद हो गया। ये सुनकर मुराद साहब घबराकर जल्दी से बाहर गए और गली के कोने वाले डॉक्टर को बुला कर लाए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहने लगे, इसकी बीनाई के साथ साथ इसकी आंखों की रोशनी के साथ साथ इसको और भी कुछ मसला हुआ है, इसे किसी बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। मुराद साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले, बेटी को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गया और जब चेकअप हुआ तो पता चला हमेशा हमेशा के लिए इसकी आंखों की रोशनी चली गई। और जब ये बात उनकी बड़ी बेटी ने सुनी तो दिल का अटैक हुआ। वो मुराद साहब को बेटी से लाख शिकवा सही, लेकिन वो बाप थे, उन्हें अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख था। वो उसे उठाकर अपने घर लाए और अपनी बेटी की तदफीन का इंतजाम करने लगे और अपनी बेटी को दफन करने का एहतमाम करने लगे। चुनांचे मुराद साहब की बड़ी बेटी नीलम की तदफीन के बाद जब घर वाले उसके जनाजे को उठाने लगे तो उसका जनाजा भारी पड़ गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन फिर भी उसका जनाजा न उठा। फिर इमाम साहब ने मुराद साहब से पूछा, ये कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनांचे मुराद साहब ने नजरें झुका ली और शर्मिंदा होकर इमाम साहब को बताने लगे, ये हर वक्त टीवी पर बैठी रहती थी, न ही अजानों का एहतमाम करती थी, न ही नमाज पढ़ती थी। जब मैं भी इसको टीवी बंद करने का बोलता तो मुझसे जुबान चलाती। इस पर यह अजाब इसीलिए आया और इसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनांचे इमाम साहब ने कहा, इसके जनाजे पर टीवी को भी रखो। जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश भी उठ गई। चुनांचे फिर टीवी को उसकी लाश पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया और वहाँ पर जाकर उसको टीवी के साथ ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। चुनांचे जैसे ही उसकी कब्र को खोदा गया और उसे कब्र में रखा गया और साथ में टीवी को भी रखा गया तो देखते ही देखते उसकी कब्र में से कई सारे सांप इकट्ठे हो गए और उसको डंक मारने लगे। चुनांचे ये मंजर देखकर मुराद साहब भी डर गए और उनकी बेटियां भी डर गई थीं और कहने लगी, ना तो हमने कभी अजानों का एहतराम किया, न आपकी बात मानी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। चुनांचे तब जैसे तैसे करके रिश्तेदारों ने उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी और उसे दफनाकर घर वापस आ गए। लेकिन मुराद साहब और उनकी बेटियां ये मंजर कभी भी भूल नहीं पा रही थीं और वो डर के मारे रोई जा रही थीं और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रही थीं और खौफे खुदा से रोई जा रही थीं। और मुराद साहब की बेटियां मुराद साहब से कहने लगी, अब्बा जान हम शर्मिंदा हैं, अब्बा जान हमें माफ कर दें, हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। लेकिन मुराद साहब और उनकी बेटियां ये मंजर कभी भी नहीं भूल पा रहे थे। लेकिन मुराद साहब अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वो हर वक्त उसकी मागफिरत के लिए दुआ करते रहते थे और मुराद साहब का कहना है कि मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी की मागफिरत के लिए दुआ करता हूँ और जो कोई शख्स ये वाकया सुन रहा है उससे भी मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि वो भी मेरी